everyone. My name is Jainil and I welcome you all to Echo with J. Today we are going to start with the fourth chapter, which is journal. If you have cleared your concept from chapter 1 and chapter 2, then this chapter is going to be very easy for you. In this chapter we are going to use the concepts which were taught to you in the first chapter, which was accounting and its terminology, and in the second chapter, which was dual effects of transaction and types of account. So this chapter is a mixture of that, but most of the parts are from the second chapter, which is dual effects of transaction and types of accounts. Whenever we start the chapter, as we move forward, we are going to clear the concepts from our previous chapters also. So let us start. Okay, starting with the chapter, the first is, just a second, I want to just change the ink. Okay, first is the journal book. Now, the name of the chapter is journal. So what is journal book? So journal book, sorry, journal book is a fundamental book, and it is the book of double entry bookkeeping system. We have already learned what is double entry bookkeeping system in the chapter 1, which which is in the last video or the second last video about double entry bookkeeping system, and also in the second chapter, like if we purchased any goods of 10,000 rupees on cash, so we made a column and we wrote which account is going to be debit and which account is going to be like credited. So in the case of, let's say, a transaction is that goods purchased of 5,000 rupees on cash. So what will be the case in here? What will be the two dual effects? First is the purchase account, goods and assets are coming in, so purchase account will be debit and cash is going out, so cash account credit. I am writing this for you, so you have to write it in your notebook. Take a notebook and write it, because it is very important. Journal is a fundamental book of double entry bookkeeping system. These two are interconnected, so consider it. Okay, let me tell you that journal is a fundamental book, and ledger book, which we are going to study forward, ledger book is called as the king of books. Okay, now next we have journal. Journal book we have already learned what is journal book. मैं आपको बता दिया journal book क्या है. Now it's time for what is journal. The word journal. The word journal is derived from a French word. French word है एक, French word है जर. इसका मतलब क्या होता है? डे. अब ये जो जर है उससे उन्होंने डिराइव किया जर्नल. ओके, ये डे टू डे, जर्नल का मतलब डे टू डे बुक. ओके, इंग्लिश वर्ड जर्नल इज ओरिजिनली ऑफ लैटिन लैंग्वेज. द मीनिंग ऑफ इट इज नोट और अ डायरी. जर्नल इज ओरिजिनली ऑफ लैटिन लैंग्वेज. ये जो फ्रेंच वर्ड है और ये जर्नल जर में से जर्नल है, और ये जो जर्नल वर्ड है वो है लैटिन लैंग्वेज का. एक ने डिराइव किया, दूसरे ने उसको आगे बढ़ाया और अभी हम यूज करें, यही बात है इसके अंदर. तो ये इसका जर्नल का मतलब होता है अ नोट और ए डायरी. समझ में आ गया? सिंपल है जर्नल और जर्नल बुक. इसके कॉन्सेप्ट क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं. एक सेकंड मैं इरेज कर देता हूं जस्ट. अब हम देख लेते हैं एक चीज छोटी सी, कि स्पेसिमेन
specimen of journal and its एक्सप्लेनेशन। अगर आप अपनी बुक उठा के देखोगे तो इसके अंदर, बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक है, चाहे जीएसईबी हो या सीबीएसई हो, नाम अलग अलग हो सकता है पर जो टॉपिक है वो सेम ही है, नाम अलग अलग नहीं होगा, यही है पर कुछ आगे पीछे होगा। मीनिंग ऑफ जर्नल, हाउ जर्नल लुक्स, ऐसा कुछ लिखा होगा बट मीनिंग दोनों का सेम है। अब देखो जो जर्नल होती है ना, जो जर्नल का जो स्पेसिमन होता है वो कैसा होता है, मेरे I do not have a scale, so I'll write. डेट होती है पहले तो, ऐसे कॉलम होगी डेट, फिर होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर होता है, ये पर्टिकुलर क्या है मैं आपको इसे मैं बना देता हूँ पहले। फिर आता है लेजर फोलियो नंबर, लेजर फोलियो नंबर के बाद आता है डेबिट और क्रेडिट। ओके, अभी मैं एक ट्रांजैक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रांजैक्शन लिखता हूँ गुड्स ऑफ goods of 2000 purchase on cash। ओके, और ये किस डेट को हुआ, लेट्स से आज कौन सी डेट है, 26 जुलाई, 26 जुलाई को ये हुआ। डेट लिख देंगे यहाँ पे हम 26/07/2024। पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, ऐसा आपको पता है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, हम वो देख रहे थे कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो पर्टिकुलर के अंदर हम वही लिखेंगे, जैसे इसके अंदर क्या हो रहा है, गुड्स ऑफ 2000 परचेज ऑन कैश, तो क्या हो रहा है, गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, डीआर लिखते हैं डेबिट को, जर्नल हम बनाते हैं, टू कैश अकाउंट। अभी ये लेजर फोलियो नंबर क्या है, ये पर्टिकुलर्स लिख दिए, डेट लिख दी हमने। अब लेजर फोलियो नंबर क्या है, समझो ये जो परचेज अकाउंट है, कैश अकाउंट है, हमने अकाउंट बना रखे हैं जिस बुक के अंदर, वो बुक के अंदर लेजर का नंबर कौन सा है वो हो जाता है लेजर फोलियो नंबर। जैसे अगर आपको देखना है कि आपने कितने परचेसेस किए हैं पूरे साल के अंदर, तो आप जर्नल तो नहीं देख सकते ना बार बार, कि मैं जर्नल देखूंगा कितना टाइम चला जाएगा आपको, कितने परचेस है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप लेजर बुक देख लेते हो। जैसे समझो परचेस अकाउंट आपके लेजर बुक के नंबर अंदर नंबर लिखा हुआ है उसका 14 और कैश अकाउंट का है 20, तो आप क्या करोगे, लेजर बुक के अंदर 40 और 20 नंबर देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओके ये है मेरा परचेज और ये है मेरा, मतलब परचेज अकाउंट और ये है मेरा कैश अकाउंट। समझ में आ गया। अब आगे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये सब एग्जाम्पल के लिए, हमारे जो अभी का ये जो चैप्टर है उसके अंदर हम लेजर फोलियो नंबर नहीं देखते, कि हमारे 11th-12th के अंदर जो आते हैं उसके अंदर हम लेजर फोलियो नंबर नहीं लिखते, क्योंकि हमको सिर्फ क्वेश्चन दिए होंगे, हमको वापस चेक करना नहीं होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम 2000 और इसके सामने वापस लिख देंगे हम 2000, और यहाँ नीचे ये सब लिखने के बाद आता है यहाँ पे नीचे नरेशन। यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं नरेशन। नरेशन क्या है, नरेशन इज अ ब्रीफ कमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये जो हमने जर्नल बनाई, जो ट्रांजैक्शन है उसका कुछ ब्रीफ कमेंट वहाँ पे लिखा होता है कि गुड्स परचेज ऑफ 2000 रुपीज़, वो नरेशन में लिख देंगे, ये हो जाता है नरेशन। So that is all for today's video, my friends. We'll meet in the next video with new interesting topics related to this chapter, and please be connected. ये वीडियो बहुत छोटा था I know, but next वीडियो से वीडियोस लंबे होते जाएंगे और अच्छे से मैं आपको सब कुछ समझा दूँगा। थैंक यू।